Hello everyone. My name is Pranshul Jungare, your host from the Pranshul podcast. ये हमारा फर्स्ट वीडियो शूट हो रहा है, फर्स्ट पॉडकास्ट है और पॉडकास्ट हमारे सारे मोस्टली बिजनेस के ऊपर रहेंगे। तो एक बिजनेस मेंटोर से बेटर कोई भी एक गेस्ट हम नहीं सोच सकते थे। तो फॉर दैट आई एम इंट्रोड्यूसिंग इन फ्रंट ऑफ यू मिस आरुषि चौहान, जो कि एक बिजनेस मेंटोर है फॉर द स्टार्टअप्स, मार्केट रिसर्च स्पेशलिस्ट है और जिन्होंने 1500 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मेंटोर किया है। स्ट्रेटेजी मार्केटिंग कंसल्टेंट भी है और साथ में काफी सारे फ्रीलांसिंग वर्क के साथ में बहुत सारे स्टार्टअप्स को, बहुत सारे फाउंडर्स को सपोर्ट कर रही हैं उनको ग्रो करने के लिए, उनको ज्यादा लेवल पर, अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए। सो आरुषि, welcome to the Pranshul podcast. You may turn on Thank you, Pranshul. Thank you for a wonderful introduction. I'm grateful to be here. And I'm really grateful to be the first one. I like to be the first one. Yeah, thank you so much, Arushi. It will be great if you can tell us about yourself कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं. So, as Pranshul said, guys, I am a startup mentor. So, I have mentored 1,500 startups, helping and empowering them to succeed. So, my ikigai and my purpose of the life is to contribute to the startup ecosystem to help individuals to succeed in and turning their dreams into passions into the business, if I must say, successful business venture. I'm also a market research specialist. I love marketing. I love sales and marketing. I love to uh, indulge with the business founders, knowing their success stories, knowing their hardships, how they get started. So I do have the expertise in developing the pitch decks, business plan, and yes, and in this particular technologies era, so I do have the expertise of working as a AI market researcher. So yeah, that's all about me. Great, that's great. So, what inspired you to become a business mentor, a startup mentor? Like I say that I'm deeply inspired by lifting others or startup enthusiasts in lifting others, right? So I contribute my journey to the startup ecosystem, as I said. So what inspired me in the idea behind these startups. So idea holds a immense power, if I must say. So जो idea होता है ना किसी, so there is a success ladder, if I must say. It begins from idea to actual success, and then it comes a dream. If I'm saying to you that turning dreams into passions and passion into actual success and business venture, तो सबसे पहले वो idea generate होता है. एक जब किसी भी फार्मर को फार्मिंग करनी होती है तो एक सीड ग्रो करने के लिए, तो वो सीड जो ग्रो करते हैं, दैट इज द आइडिया. तो वो आइडिया इतना पावरफुल है कि वो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है आपकी कम्युनिटी में. सो दैट इन्वॉल्विंग इन द आइडिया इज ट्रूली इंस्पायर मी. एंड सो पीपल डू हैव द आइडिया, बट वो क्या करते हैं कि जैसे ही उनको ब्रिलियंट आइडिया मिल गया, दे स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व इन इट एंड दे स्टार्ट getting emotionally involved in it. And वो क्या करते हैं, just they launch their product. Now they need to analyze कि आइडिया जब आपका बन जाता है उसके बाद you need to do a market research. आपका कोई भी आइडिया है, you need to validate that idea, which is really important. How you can do so? There is a simple process where you can start by analyzing your market, by understanding your customer, by analyzing your competitors and identifying their strength or weakness. जब तक आपका कोई भी आइडिया है, कोई भी मेरे पास आइडिया लेकर आता है, तो उनको यही नहीं पता होता कि वो आइडिया सर्व किसे कर रहे हैं. टारगेट ऑडियंस ही नहीं पता होता, राइट? सो जब आप तक आपको अपना टारगेट ऑडियंस का पेन पॉइंट नहीं जानोगे, उनका ये नहीं जानोगे कि कैसे उसे रिजॉल्व कर रहे हैं, तब तक कैसे होगा आगे, राइट? सो फर्स्टली यू नीड टू हैव create a validation of your idea. How you can do that?
by analyzing your competitors, by getting deep dive. आपका gardening का passion, you have the passion to do the gardening, but उसमें market growth है ही नहीं. You are a software engineer, आपको technology में interest है, yes उसमें market growth है, right? But क्या वो सॉफ्टवेयर, क्या वो पर्पस, ऐसे तो गार्डनिंग में भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी, राइट? करेक्ट. तो क्या वो आपके पास मार्केट है? नहीं. और मार्केट है तो हाई कंपटीशन भी है, कॉम्पिटिटर्स हैं. कॉम्पिटिटर्स की वीकनेस जानोगे तभी तो आप अपना आइडिया को लेवरेज करोगे. व्हाई यू आर बेटर देन अदर्स, ये तो आपको दिखाना पड़ेगा ना दुनिया को. करेक्ट. So that is the basically the idea where I can help them to visualize, validate their ideas. So that really inspired me. And what keeps me inspired and motivated, it's that light bulb movement of the founders when they get the clarity कि हाँ अब हमें ये समझ में आ गया. When they get the clarity, when they achieve something in their ladder, right? When they secure funding. So that is basically which inspired me a lot. So I have worked with brilliant founders, you name it, from top tier institute like IIM and IITs to tier 2 and tier 3 brilliant founders also, right? Even the founders aged from 50 above, and even the founders from 18 years. There is a mass market in the startup culture. So सबका बिहेवियर एनालाइज करना, सबके ड्रीम्स एनालाइज करना, सबकी सक्सेस स्टोरी सुनना. मेरा जब भी इंटरेक्शन किसी से साथ होता है प्रांशु, सो आई जस्ट हैव अ स्टार्टिंग क्वेश्चन इज हाउ यू गेट स्टार्टेड. कैसे स्टार्ट किया, व्हाट आर योर हार्डशिप्स, हाउ यू हैव एनकाउंटर्ड दिस प्रॉब्लम. आइडिया जब आपका जनरेट होता है वो आपसे ही जनरेट होता है. जब भी कोई भी मेरे पास आइडिया लेकर आता है, दे पीपल आर लाइक कि आई नीड टू start a business, I want to start a business, I want to grow a $1 billion company, I want to be a good podcaster. There are multiple and plethora of things, right? Correct. उन्हें स्टार्ट करना है, बट क्या स्टार्ट करना है, आइडिया कहाँ है आपका. देन क्या करते हैं, वो आइडिया ढूंढने लग जाते हैं. आइडिया वो होता है जो लाइक आइडिया कम्स जो आपके पैशन से आए, जो आपकी स्किल से आए. ठीक है, आइडिया इज सिमिलर टू व्हाट यू रेजोनेट विद योर पैशन. आइडिया वो होता है जिससे आप, तो यही सारी चीजें मुझे बहुत पैशनेट करी. लाइक आई स्टार्टेड माय स्टार्टअप जर्नी early in my career. So like when I started to learn about the business culture, when I started to learn about what startup is, like how startup is developing, how this startup ecosystem is booming, तब से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली. देन आई जस्ट dwell in this business. Correct. That's good. As you just told us कि बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ में बात हो रही है, आइडियाज वगैरह आ रहे हैं, तो ऐसा कोई एक आइडिया जो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, या कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी की हाँ जहाँ पे याद रखने लायक कि हाँ ये हमेशा याद रहेगी मेरी पूरी जर्नी में? So there are plethora of success story, but I started with the ground reality. ठीक है, एकदम नीचे से आती हूँ मैं. The founder that I'm talking about is completing, I guess, MBA or is pursuing the MBA. ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट मिला. So like he came up with an idea, and he just came up with an idea that is not even original, just an idea. No strategy, no business plan, no pitch deck, neither of the business plan nor of the strategy. He didn't know anything about what he needs to do with this idea. Just a passion to do something, to contribute towards the society, so that he has analyzed and encountered some pain area, right? So he has to build tech enabled platform. So I won't be able to tell the name of the founder and his name. So it's in a salon and beauty and wellness market industry. Okay. तो उन्होंने ये पेन एरिया फाइंड आउट किया कि
ठीक है, बहुत सारी एप्स आ गई हैं, अर्बन क्लैप, यस मैडम, एवरीथिंग, बट व्हाट इफ यू वांट टू गो टू आउटसाइड टू द सैलून एंड वेलनेस सेक्टर, राइट? एंड आई गेस ये कोविड के बाद की बात है, राइट? तो उनका ये आइडिया था कि उनके पास मतलब अब जैसे भी आप जाते हो तो उन्होंने पेन आइडिया फाइंड किया कि किसी भी आप सैलून या वहां पे जाते हो तो आप यू नीड टू वेट, आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है, आपके आसपास कितने हैं, बिकॉज एवरीवन इज अराउंड ourselves इज वर्किंग प्रोफेशनल, आइदर दे आर बिजी इन, आइदर दे आर होम मेकर और वर्किंग प्रोफेशनल, सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, नहीं इतना वेट, और आजकल सबका पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है, बहुत कम राइट? हो गया, करेक्ट। या बहुत कम हो गया है, थैंक्स टू आवर शॉर्ट फॉर्म रील्स एंड एवरीथिंग, करेक्ट। व्हाट्स इट, जो भी है, but coming back to your question, so the startup identify the problem of neither the saloon services and beauty sectors are getting the visibility as much as they can, nor the customers identify कोई, क्योंकि नॉर्मल आप अगर किसी भी पास में आपका कोई बहुत अच्छा ब्यूटी सैलून है, इग्नोरिंग गीतांजलि एंड लुक्स या द ब्रांडेड वन, नॉर्मल आपका पार्लर वगैरह कुछ भी है तो आपको नहीं पता चलता है क्या वो डील्स ऑफर कर रहे हैं, आपको नहीं पता चलता है आपकी प्राइसिंग क्या है, 1 किलोमीटर में आपके 10 सैलून खुले हुए होंगे बट आपको कुछ नहीं पता चलता। सो व्हाट दे not only for customer but they also develop the app for the uh, beauty salon providers, तो ब्यूटी सैलून प्रोवाइडर्स के लिए विजिबिलिटी भी हो गई, ब्रांड अवेयरनेस भी होगी, इवन दो दे कैन ऑल्सो मैनेज देयर एंटायर बिजनेस इन देयर इन दैट पर्टिकुलर ऐप। ओके। आप अपने अकाउंटिंग भी सब कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को भी हैंडल कर सकते हैं, अटेंडेंस, एवरीथिंग, win-win solution, right? And for the customers you can check nearby saloons, you can also delve into what are the membership deals, cost verification kar sakte ho so that you can take a wise decision, right? So I found it really, mind-blowing idea, first of all, but he hasn't have that strategy, that business plan, what he can do with that marketing. Neither he has developed his MVP, nor he has the mind map. So I helped him in the market research, in the content developing of their app, website, also help them in developing their MVP, also in the business plan and everything. So I believe in one thing, a brilliant idea can be, can be failure if it executed poorly, but a normal idea can be, a breakthrough can transform entire industry if it executed properly and accurately. So this is the great and epitome of that example, this startup. It's great. So how do you help them to overcome from these situations? So like I have started with the market research, as I said, I have started with the idea validation. I started is the industry is booming? Yes, it is. And are the customers, are the saloon providers? So I've, created a questionnaire, a survey so that he can, you know, हमेशा ये होता है कि आपको कस्टमर्स को जब भी आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो, दे आर मल्टीपल रिसर्च प्रोसेस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, राइट? तो आपको उनके पास जाना होता है, अपने कस्टमर्स को एनालाइज करना सेकेंडरी रिसर्च से नहीं होता है, प्राइमरी रिसर्च भी होनी चाहिए इसमें, इफ यू वांट टू बिल्ड योर स्टार्टअप। उनके व्यू पॉइंट्स जानना, तो उसके लिए मैंने उनको हेल्प की है कि कैसे कैसे स्टेप वाइज आप प्रोसेस बना सकते हो। स्टेप 1 is to know your customer in depth, what are their pain points, क्या सैलून प्रोवाइडर्स आपके नियर बाय एरियाज में ये प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं और क्या सॉल्यूशंस है उनके पास या है ही नहीं, Okay. or either the customers. So first, the understanding your customers by research and understanding your customers, and after that, is there any competitors? अर्बन क्लैप और ये यस मैडम, ये वाले जो कॉम्पिटिटर्स है, ये होम सर्विस है, इसमें क्या ड्रॉबैक्स है, ये आपको एनालाइज करने पड़ेंगे।
So once you analyze your competitors and done the market research, then it will be then the another process is developing the MVP. So I'm not saying कि MVP आप अपना ये कोई भी वेबसाइट या ऐप बहुत अच्छे से बना लो. Just create a wireframe. So and test it in a short audience. Small audience पे आप कर सकते हो, like 100 to 50 within your area. उस पे टेस्ट करिए. देन मार्केटिंग के लिए थैंक्स टू आवर सोशल मीडिया अगेन. मार्केटिंग सोशल मीडिया इज currently booming. Social media में like us, content creator, influencers and multiple brands. आपने niche hair के बारे में सुना होगा. उनकी marketing strategies, Zomato की, Swiggy की marketing strategies is impeccable. करेक्ट. तो राइट, तो उस तरह से फिर आप टेस्ट करिए. नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फंड रेजिंग, सो उसके लिए फिर अलग प्रोसीजर है. बिकॉज जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट से इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कि वो बहुत सारी डिफिकल्टीज है और दे लैक एंड दे स्टक इन समथिंग व्हाइल डेवलपिंग द पिच डेक्स, ओके. व्हाइल डेवलपिंग द बिजनेस प्लान, जो कि हम आगे बात करेंगे फॉर श्योर. पिच डेक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या रीजन है पिच डेक का? क्यों बनाना चाहिए? क्या क्या यूजेस रहते हैं उसके Yeah, पिच डेक के? pitch deck is not just important; it's critical while you are raising funds, while you are, you know, going for a fundraise and asking for the investment to investors. ठीक है, आप मानोगे नहीं, एक इन्वेस्टर्स के पास अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 3 minutes and 44 seconds वो एक पिच डेक को रिव्यू करने में लगाते हैं, राइट? And yeah, pitch deck is not important. Pitch deck is critical for the investment journey, right? Investors always want pitch deck. So pitch deck is just a helicopter view of your business, right? And according to the research, investors के पास 3 minutes and 44 seconds होते हैं एक pitch deck को review करने में. ये तो रिसर्च की बात है. ओके. बट मेरा भी इंटरेक्शन काफी इन्वेस्टर्स के साथ हुआ है, बी इट एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट. तो उन्होंने ये बता रखा है मुझे कि आरुषि, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मेनी डेक्स वी गेट इन अ वन पर्टिकुलर डे. इट्स लाइक मोर देन 100, माय राइट? गॉड. या. एंड क्या? डू यू रियली बिलीव कि इन्वेस्टर्स के पास 100 डेक्स हैं और वो उनके पास सिर्फ आपके डेक रिव्यू करने का काम नहीं होता है? They are a busy करेक्ट. person, guys. So उनके पास काफी काम होता है. So what they do, they just glance over it. Idea अच्छा लगा, then they move further towards the another slides. Then you approach them for the meeting. So like due diligence, there are plethora of things, right? So यहाँ पे क्या founders lack करते हैं? They lack because they are so much connected with their business, their startup. तो वो क्या करते हैं कि they stuck each and every information in their pitch deck, which is totally wrong. आज आप हमें ही देख लीजिए, ठीक है? मैं भी मैंने काफी डेक्स रिव्यू करे, राइट? और मैं अगर बिकॉज आई एम अ स्टार्टअप मेंटर, आई एम स्पेशलाइज्ड इन पिच डेक एंड बिजनेस प्लान, राइट? अगर आप मुझे हटा के आप खुद को भी देखो या कोई भी पर्सन देखो आप एक वीडियो देखना प्रेफर करोगे rather than reading that PDF, obviously, right? करेक्ट. या. Attention span of time, once again. और also किसी के पास टाइम नहीं है इतना पढ़ने के लिए, ठीक है? करेक्ट. सो और आजकल क्या हो गया है कि विजुअली जो भी जितना इम्पैक्टफुल हमें लगे विजुअली और क्रिएटिवली, हम उसी को देखना पसंद करते हैं, राइट? सो व्हाट दे डू, so there are plethora of things that I have identified, the few gaps the founders make, that is to make their pitch deck too wordy, heavy content, really. It's like ओके. introduction, vision, mission, problems को भी इतना आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इतना ज्यादा पूरा पैराग्राफ में लिख रहे हैं, फिर सारे अपने कॉम्पिटिटर्स वगैरह. तो इट्स लाइक स्ट्रक्चर ही नहीं है, स्टोरी लाइन ही नहीं है, राइट? ओके. ऑल्सो दे डोंट कैलकुलेट देयर मार्केट साइज एक्यूरेटली. और डिजाइन तो पूछ ही मत. डिजाइन भी इट्स लाइक डिजाइन इज really important in the pitch deck, so ओके. to make it more impactful, visually creative. So like I and my team, what they did,
So what we did, we create a compelling pitch decks, also robust financial projections, and creative design deck. So we help them because investor, as I say, investor के पास टाइम नहीं होता, तो आप शॉर्ट वर्ड्स में इन पिच डेक conciseness and clarity is the best friend while creating the pitch deck. Keep it straightforward, aim for simpleness, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसाइज और क्लैरिटी में आप जितना लिखोगे उतना ही प्रेफर करते हैं इन्वेस्टर्स, rather than specifying the problems in too much heavy words. Lack of seamless technology because this and this, inefficient Yeah. technology. Yes, yes, और yes. आप आइकन से समझाओ, विजुअली दिखाओ, इतना नहीं टाइम होता है, तो ये फाउंडर्स को बहुत ज़्यादा अपने माइंड में रखना चाहिए कि अपना पिच डेक को क्लियर रखें, क्लैरिटी रखें, डू नॉट ऐड वर्ब्स, डू नॉट ऐड एडजेक्टिव्स ब्रो, this is not at all recommended. So and for the market calculation, रिपोर्ट आपको मिली कि एआई का मार्केट साइज अभी मैंने पढ़ा था 184 बिलियन है, तो बस वो ले लिया, वो नहीं मार्केट साइज ऐसे कैलकुलेट नहीं होता है, देयर इज अ प्रोसीजर, देयर इज अ सीएजीआर कैलकुलेशन, उस तरह से हम्म, टैम सैम सॉम कैलकुलेट होता है। मार्केट साइज आपको इंडस्ट्री का नहीं, आपको अपना दिखाना है। इन्वेस्टर विल लुक ऑन योर फाइनेंशियल हेल्थ, ऑन योर मार्केट साइज, कि अगर मैं इस मार्केट में, अगर इसमें बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आगे मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, ऑब्वियसली राइट। करेक्ट। या इसीलिए वो बिजनेस कर रहा है। ऑब्वियसली वो या क्यों इन्वेस्ट करेंगे आपके बिजनेस में जब तक उनको इन्वेस्ट, और दे इन्वेस्ट इन पीपल, दे इन्वेस्ट इन स्टोरी। इन्वेस्टर्स सिर्फ पिच डेक के साथ साथ स्टोरी लाइन भी देखते हैं। अब वो ज़माना चला गया क्योंकि जब पिच डेक इंडस्ट्री बूम हुई थी, सो देयर इज़ अ जेनेरिक टेम्पलेट, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, मार्केट साइज़, बिज़नेस मॉडल, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, टीम, दैट इज़। अब वो नहीं रहा है, अब यू नीड टू बिल्ड अ स्टोरी लाइन। अब हेडिंग्स में भी लोग प्ले करते हैं। करेक्ट। यस, तो रियलिटी शोज में ही देख लीजिए आप, एग्ज़ैक्टली, जब शार्क तक कोई टैंक। स्टोरी नहीं है, या जब तक कोई स्टोरी नहीं आती है, जब तक कुछ मसाला नहीं आता क्या इसके पीछे कितनी बड़ी चीज है, तब तक वो एपिसोड भी ज्यादा अच्छा नहीं चल पाता है। और क्लाइमैक्स में इतने आपको मज़ा ही नहीं आया, नॉर्मल स्टोरी लाइन चलाओ, क्या ही आएगा आपको? जब आप तक स्टोरी लाइन बिल्ड नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। ओके। सो जैसे आपने डेक के बारे में बताया, पिच डेक के बारे में बताया कि कैसे हुँ, कैसे होना चाहिए, वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए कि हाँ ये स्किल्स रहे तो ज्यादा अच्छे आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, या ये चीजें नहीं होनी चाहिए सो दैट आप चीजों को सही तरीके से देख पाओगे? तो क्या चीज है, क्या स्किल सेट होना चाहिए उनका, एंटरप्रेन्योर्स फर्स्टली का? he or she should be passionate about their business। ओके। पैशनेट एंड लॉन्ग टर्म क्लैरिटी रहना काफ़ी ज़रूरी है। आप अगर बिकॉज बिजनेस इज अ, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक स्किल्स तो अलग हैं, बट ये स्किल से थोड़ा हटके, पैशनेट क्यों होना चाहिए आपको बिजनेस? फर्स्ट delving into the skill set, I want to tell you about the framework that you can, when you want to start a business, it's called team in framework: time, energy, money, education, and network. These five things are really important when you are starting up your business. टाइम होना चाहिए बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस जर्नी स्टार्ट करने के लिए अनडिवाइडेड फोकस है। कोई भी आप, इवन इफ यू आर स्टडिंग फॉर एन आईआईटी एग्जाम्स, इवन यूपीएससी एग्जाम, अनडिवाइडेड फोकस होना ही चाहिए। बिजनेस भी उसी तरीके से, राइट। करेक्ट। एंड वन इज एनर्जी। आपको एनर्जी कैसे आएगी? एनर्जी आएगी आपको पर्पस से, और अगर आपका पर्पस लॉन्ग टर्म होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप, तभी मैंने आपको बोला कि आइडिया वो चूज करो जिसके बारे में आप पैशनेट हो, जो आपकी स्किल सेट है। आप डिजाइनिंग फील्ड से हो और आप टेक्नोलॉजी वाला स्टार्टअप चूज कर रहे हो, वो आगे तक ग्रो नहीं होगा। आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, कैसे करोगे? डू वॉट यू लव, आई बिलीव इन दैट, राइट। नाउ कमिंग बैक टू मनी। सो आजकल क्या होता है, जो एफ आई
differentiate among the early age founders, as in 18 से 25 की एज में मैं लूँ, जो कॉलेज गोइंग है, सो देवर लाइक कि पैसा चाहिए, ग्रैटिफिकेशन, ठीक है, ग्रैटिफिकेशन उनको चाहिए कि जल्दी से पैसा बनाए, जल्दी से पैसा बनाए। बट जो लेटर स्टेज है, लाइक आफ्टर 25 30s and most stable, like after 30 to 45, like average age of the founder is like 45, मैंने कहीं पढ़ा था। तो उनका क्या है कि ठीक है, स्टेबल बनाना है अपने बिजनेस को, सो ग्रैटिफिकेशन में वो नहीं उलझते। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका 1 ईयर ऑफ द बिजनेस, उसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी अप एंड डाउन चलती रहेगी, मे बी प्रॉफिटेबिलिटी हो ही ना, मे बी पैसा ना आए। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन में ही रिस्क है भाई। entrepreneur Exactly. yeah entrepreneur is a person who can run business and take the Mhm. financial risk, राइट? तो रिस्क जब तक नहीं लोगे आपको नहीं पता चलेगा। तो मनी, आपको मनी के पीछे इतना भागना नहीं है। फर्स्ट वर्क ऑन योर प्रोडक्ट, वर्क ऑन योर सर्विसेज। इंटीग्रिटी यहाँ पर आती है, आके आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बस बेचना है, और बेचना इस तरीके से है कि आगे सामने वाले लोग जो आपके टारगेट उनसे प्यार करने लगे, तभी वो कस्टमर रिटेंशन होगा। जब तक आपके प्रोडक्ट कस्टमर एक्वायर फर्स्ट टाइम हो गए, दैट इज नॉट द गुड लेवल ऑफ मार्केटिंग, और व्हाट यू कैन से गुड लेवल टू मैनेज योर बिजनेस, राइट? देन कम्स मनी अगेन। कॉस्ट कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल तो होना जरूरी है। इवन दो लाइक Exactly. देयर आर प्लेथोरा ऑफ लाइक कंटेंट क्रिएटर्स भी मैंने बहुत देखे हैं, क्या लाइक रील्स भी देखी हैं, उसमें कह देते हैं ना कि लाइक सेटअप योर बिजनेस विद $0, विद नथिंग एंड ऑल। ऐसा हो सकता है आपके स्किल सेट पे, पर कहीं ना कहीं पैसा लगता है। कैश कैपिटल नहीं तो ह्यूमन कैपिटल लगती है, राइट? आप सोलो एंटरप्रेन्योर हो, गुड, आप काफी चीजें नहीं कर सकते, आपकी एक एक्सपर्टीज है, ठीक है, मेरी एक्सपर्टीज है मार्केट रिसर्च, मेरी एक्सपर्टीज है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, मेरी एक्सपर्टीज है मार्केट एनालिसिस करना, राइट? मेरी एक्सपर्टीज इज मार्केटिंग एंड सेल्स, राइट? Correct. But if it comes to financials, yes, I do have the knowledge of financials, but मेरे पास है एम्प्लॉय, मेरे पास है मेरे साथ मेरे टीम वर्कर हु आर द CFAs एंड MBA स्पेशलिस्ट इन फाइनेंस, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा फाइनेंशियल मॉडल्स बना सकते हैं। तो व्हाई आई कैन लेवरेज देयर स्किल्स। Exactly. बिजनेस ऐसे ही होता है, आप जितना नेटवर्क जितना वो करोगे उससे होता है। नाउ कम्स द एजुकेशन। आपको आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की एजुकेशन बहुत होनी चाहिए, फ्रॉम A to Z। यू शुड नो अबाउट इट होल, कि आप क्या बेच रहे हो, कि आप क्या कि दूसरे लोगों को उससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं, क्या उसके निटिग्रिटीज है, सारी चीजें। एंड वंस अगेन नेटवर्क, नेटवर्क प्लेज अ ह्यूज रोल इन बिल्डिंग द Exactly. रिलेशनशिप्स, या बिल्डिंग द रिलेशनशिप्स, कोलैबोरेशंस। अगर मैं यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम को सर्व कर रही हूँ, तो मेरे पास कोलैबोरेशंस हैं जो कि स्टार्टअप को हेल्प करें MVP डेवलप करने में, नेटवर्किंग के लिए, ठीक है, एंजल नेटवर्क्स, एंजल इन्वेस्टर्स, एक्सीलरेटर्स, वो सब के लिए नेटवर्क्स होने बहुत चाहिए। जरूरी है, बहुत जरूरी है एक्चुअली। एग्जैक्टली। सो लाइक आप कोई भी तो बिजनेस देख लो, ये तो मैंने चलो अपने बिजनेस के बारे में बता दिया। लाइक एज अ माय मदर इज अ फैशन डिजाइनर, राइट? oh, that's great. या, Yeah. सो लाइक आई हैव इवैल्यूएट हर बिजनेस एंड लाइक व्हाट शी डू। सो उसमें भी कोलैबोरेशंस एंड उसमें भी नेटवर्किंग की काफी जरूरत होती है। आप Yeah. नेटवर्क देख लो, आप इवेंट्स में देख लीजिए, आप, ठीक है, बहुत सारे, लाइक इफ यू आर जस्ट मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, नॉर्मल कोई भी डिजाइनिंग डिस्क, तो उसमें कितने सारे एम्प्लॉयज वगैरह नेटवर्क्स की जरूरत होती है। सो देयर प्लेथोरा ऑफ थिंग्स। करेक्ट। सो एज यू जस्ट सेड कि स्टार्टअप्स वगैरह काफी सारे होते हैं। हाउ डू यू अप्रोच देम? कैसे आप उनके पास में जाते हैं कि हाँ मेंटोरशिप की जाए करके आपको जरूरत है, कि हाउ डू यू एनालाइज दैट कि इस स्टार्टअप को जरूरत है और इसे मैं कैसे अप्रोच करूं? तो हाउ दैट वर्क्स?
So, like, see, as I told you, every startup has their unique story. तो सबकी स्टोरी अलग होती है. आपको एक कोई एक तरीका नहीं होता किसी को अप्रोच करने में, राइट? एंड हेयर व्हाट फाउंडर्स डू, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं सेल्स और मार्केटिंग करते वक्त. सेल्स करते वक्त एक पर्सनलाइज्ड आप मैसेज बना देते हो ना, कोल्ड ईमेलिंग या कोल्ड लिंक्डइन आप करते हो अपने क्लाइंट्स को रीच आउट करने के लिए. सो यू आर लाइक, हे आई एम दिस एंड दैट, आई एम अ स्टार्टअप मेंटर, आई एम ऑल्सो specialize in developing pitch decks and business plan, would you like to avail my service? और वो सबको भेज देते हैं, राइट? करेक्ट. दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? सामने वाला आपका क्यों सर्विसेज लेगा? आपने एक बार भी उसको जानने की कोशिश करी? नहीं. आपने उसका क्या मतलब, आपने जस्ट अपनी सर्विसेज बेची, राइट? So, as I told you, the importance of the market research holds. Market research is really critical. लोग इतना इसको, हिंदी में वो कहते हैं ना, तवज्जो, या इम्पोर्टेंस, तवज्जो. या या. इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है. जब आपको मैंने कहा कि जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो तो आपको अपने इन्वेस्टर्स को, अपने टारगेट ऑडियंस को एनालाइज करना चाहिए, right? Similarly, when you are selling your product, your services, you need to analyze your customers first, even though you are reaching it like a cold emailing, कैसे भी, right? अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपनी मार्केटिंग भी कर रहे हो तो आपको पहले उनको रीच आउट करने से पहले अपने टारगेट ऑडियंस का पेन एरिया समझना होगा. लाइक मेरा क्या तरीका रहता है, इफ आई एम रीचिंग आउट थ्रू कोल्ड ईमेलिंग, आई एम जस्ट सेइंग कोल्ड ईमेलिंग या लिंक्डइन के थ्रू, फर्स्ट आई एनालाइज देयर प्रोफाइल. क्या बिजनेस कर रहे हैं, किस बिजनेस सेक्टर में कर रहे हैं, आर दे अ फाउंडर ऑफ D2C ब्रांड, आर दे फाउंडर ऑफ सस्टेनेबल फैशन, आर दे फाउंडर ऑफ लाइक टेक एनेबल प्लेटफॉर्म. सबका अलग अलग वे होता है. देन आप उनके पोस्ट एनालाइज करिए. क्या आपको लगता है, आपको देख के ही पता चल जाएगा. सबसे पहले जब आप रिसर्च करते हो ना, तो there are plethora of resources thanks to our government portals too, where you can get that कि हाँ ये सीड है. आप एक तो ईयर वाइज भी कर सकते हो. सो दे आर स्टेजेस ऑफ फंड रेजिंग, राइट? एंड फंडिंग स्टेजेस होती हैं, सीड फंडिंग, सीरीज ए, ठीक है? सो करेंटली लाइक आई एम working with early stage founders, beginning from the ideation stage to series ओके. B stage, right? So ideation stage or series A stage, ideation or seed funding has no idea कि क्या होती है. Even they don't know about कि ये प्रोसेस ही क्या होता है. सीरीज ए, सीरीज बी, इन सबको, और प्री सीड फंडिंग, इन सबको थोड़ा बहुत आइडिया होता है क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या किया हुआ है, बिकॉज उन्होंने पहले से इन्वेस्टमेंट ले ली. और एक क्राइटेरिया भी होता है, अगर 6 मंथ्स पहले किसी ने फंडिंग ली है तो ऑब्वियसली दे आर नॉट लुकिंग फॉर द फंडिंग राइट नाउ. एंड इफ दे आर नॉट लुकिंग फॉर द फंडिंग राइट नाउ तो पिच डेक में भी अभी वो इतना ध्यान नहीं देंगे. बट कभी कभी क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट्स करवानी होती है, रिफाइनमेंट करवानी होती है, और इट्स नॉट अबाउट द पिच डेक एंड बिजनेस प्लान, इवन दो आई हेल्प विद द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है? तो वो प्रोफाइल जब आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आर दे गुड इन द मार्केटिंग, कंसिस्टेंट हैं ये, right? So to run a business, whether if you are building up your marketing strategies, you need to analyze their profile firstly, analyze their pain area. आप पहले उनकी प्रोफाइल देखोगे, एनालाइज करोगे कि हाँ इनको आपकी प्रोफाइल चाहिए, देन यू रीच इन अ some way like, I'm really amazed and impressed with your startup, the D2C brand, और जो उन्होंने recent पोस्ट की है. तो मेरा ये क्राइटेरिया रहता है, रीसेंट पोस्ट किया उसमें उन्होंने क्या बात कर रही है, उस तरह से मैं अपना आउटरीच मैसेज क्रिएट करती हूँ, देन आई रीच टू देम. और आपका मार्केटिंग वाला एरिया भी होता है, आइदर यू गो फॉर ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग. सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या होता है, वो लार्जर ऑडियंस को टारगेट करती है. But for a founders like us, for a startup mentor like us, because our target audience is entrepreneur and the founders, so LinkedIn is the best platform where you can connect with anyone. And if your business is in the entertainment and D2C, so आप थोड़ा इंस्टा पे, अपनी इंस्टा मार्केटिंग पे आप ध्यान दे सकते हैं. मैं वहीं पर आ रहा था एक्चुअली. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि
अभी दो चीजों में, दो तरीकों में बढ़ गया है बिजनेस। एक वो हम्म। है जो हमारे बुजुर्ग लोग जो करते थे ट्रेडिशनल मेथड से, ट्रेडिशनल जो कि बिजनेस। मेजरली वो रिलेशनशिप के ऊपर मेजरली काम करते थे। और अभी के जो न्यू एज फाउंडर्स है, न्यू एज स्टार्टअप्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, वो लोग अपने नए तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे कि जोमेटो, आप हम्म। देखिए जोमेटो कितना अलग डिजिटली यूज कर रहा है चीजों को। हम्म। बहुत सारे पॉडकास्ट में जा रहे हैं दीपेंद्र गोयल, बहुत सारे एड्स वगैरह में आ रहे हैं, कितने सारे जजेस वगैरह इवन में दो अभी बनकर। उन्होंने कोई कैंपेन रन किया था वेयर लाइक ही एक्ट्स एज अ डिलीवरी पर्सन, तो उन्होंने एक या दिन के लिए वो करेक्ट। लाइफ जी थी कि क्या क्या होता है। या तो वो चीजें हो रही है, तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन देम कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या ज्यादा बेटर कौन सा है दोनों में से, लाइक पुराने तरीके या फिर अपने नए तरीके? आई कांट से कि ट्रेडिशनल मेथड गलत था, और मैं ये भी नहीं कह रही कि अभी वाला मेथड है। ऑब्वियसली बीइंग फ्रॉम दिस जनरेशन मुझे अभी वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगेगा, बट मैं कोई ऐसा डिफरेंशिएट नहीं कर रही, बिकॉज जनरेशन वाइज क्या होता है प्रांशुल, चीजें बदलती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करेक्ट। इसे ही कहते हैं, राइट। एआई और टेक्नोलॉजी बूम हम अगर 10 साल पहले देखें इतना नहीं था। जब से ओपन एआई आया है तब से वो बूमिंग, और तब ये सारी चीज आई है, राइट। बट अगर हम सिमिलैरिटी पे बात करें ना, तो रिलेशनशिप बिल्डिंग ट्रेडिशनल बिजनेस में भी रिलेशनशिप बिल्डिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, और अभी भी नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप बिल्डिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। पहले क्या होता था, कोई नेटवर्किंग या इवेंट्स नहीं होते थे। अब इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है बिकॉज लोग क्या हैं आजकल, even the extrovert, I'm the extrovert who turns to be ambivert. So even the extrovert like us won't like to connect with anyone that much, है ना। तब जब और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, ट्रेडिशनल बिजनेस में ये होता था कि आपके लोग शॉप पर आ रहे हैं, आप ग्रोसरी स्टोर्स ले लो, शॉप पर आ रहे हैं, घंटों घंटों वहां पे बात कर रहे हैं, राइट। करेक्ट। दे आर या एंगेजिंग विद द पर्सन लाइक फॉर एन आवर, बात कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, तो वो एक रिलेशनशिप बिल्डिंग, क्योंकि अगली बार वो बंदा आएगा तो मेरी शॉप से शॉप करके जाएगा, राइट। इवन फॉर लाइक पार्लर वाली आंटीज ले लो, इवन फॉर अ फैशन बिजनेस आप ले लो, जो वो स्टिच के लिए ब्यूटीक्स वगैरह होते हैं, ये मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रही हूँ। और तब ये भी था कि जैसे आर्टिसंस हमारे होते थे, वेंडर्स और आर्टिसंस, वो कितने हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते थे, राइट। जो कि अब हैंडमेड प्रोडक्ट्स आप देखो वो लग्जरी में जा रहे हैं, पहले वो नॉर्मल होते थे, ठीक है। और अब आप देखो उसकी मार्केट ऐसे बूम हो गई है कि वो लग्जरी प्रोडक्ट्स में काउंट करते हैं। सो ये जनरेशन एग्जैक्टली। वाइज है, राइट। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आज के एरा में, पीपल आर मोर फोकसिंग ऑन द मार्केटिंग, सोशल मीडिया। अब आप देख लो, पहले आप जाते थे, आप व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास एक फोन, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी काफी अच्छी आई है, राइट। पहले क्या होता था, एंड ग्लैड टू अस द पर्सन हु बोर्न इन 90s लाइक अस, हमने दोनों लाइफस्टाइल देखी है। हमने वो भी लाइफस्टाइल करेक्ट। देखी है जब स्मार्टफोन इतना प्रोपेल नहीं हुए थे, हमने वो लाइफस्टाइल भी देखी है जब स्मार्टफोन इतना ज्यादा बूम हो गया कि सारा ही काम उसमें स्मार्टफोन और लैपी से चल रहा है, राइट। करेक्ट। सच अ ग्रेट एग्जाम्पल, राइट। नो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मार्केटिंग हम देख लें, पहले हमारे न्यूज़पेपर होते थे, नानी दादी न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उसमें पैम्पलेट्स आते थे, बिल बोर्ड्स होते थे, बिल बोर्ड्स में या हम देख रहे होते थे। अब क्या होता है, हम कैब से ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे हाथों में फोन है, इवन वी आर नॉट लुकिंग आउटसाइड ऑफ द विंडो, राइट। तो उसी पे ही सारे जा रहे हैं, आपके एल्गोरिदम्स के हिसाब से, आपके रिकमेंडेशंस के हिसाब से, सारे आपके जैसे मिंत्रा में देख लो, इंस्टाग्राम में देख लो, वही एड्स आ रहे हैं जो आपको पसंद है। आपके एल्गोरिदम्स और मेरे एल्गोरिदम्स, इंस्टा एल्गोरिदम्स, लिंक्डइन एल्गोरिदम्स, यूट्यूब एल्गोरिदम्स काफी डिफर होंगे बिकॉज ऑफ आवर रिकमेंडेशंस। करेक्ट। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो इसी से रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन है कि हाउ डू यू हैंडल सिचुएशंस वेयर अ स्टार्टअप इज स्ट्रगलिंग टू गेन ट्रैक्शन? हाउ डू यू डू दैट? ओके, सो हाउ डू आई डू दैट? सो इफ यू सी ना, अगर आप जैसे सक्सेसफुल बिजनेस कोई भी फेलियर पे जाता है, तो देयर इज अ वन टर्म कॉल्ड पाइवटिंग,
right? Yeah. So Yes. people tends to think that pivoting means failure, but it's not Hmm. that. Pivoting is just another way to get that सक्सेस रोड. आपकी जो सक्सेस लेडर है, ठीक है, और आपका कोई एक सक्सेस जर्नी, राइट? तो अगर आपको इससे रास्ता आ रहा है, नहीं बना, तो आप दूसरे रास्ते से जाते हो, राइट? सो सिंपल आपको पहुंचना है उस टॉप पे. सो देयर आर सम मल्टीपल वेज दैट यू कैन डू इट, right? If you're Correct. not gaining a traction, coming back to your question, so you really need to evaluate your SOPs, your system, your processes, राइट? मार्केट रिसर्च सिर्फ ये नहीं होता है कि स्टार्टिंग में मार्केट रिसर्च कर लिया, कॉम्पिटिटर्स एनालाइज कर लिए, कस्टमर एनालाइज कर लिए, नहीं. आपको अपना पूरा बिजनेस आपका, ठीक है, अब मैं एग्जांपल ऐसा लेती हूँ कि एक बिजनेस वेल एस्टैब्लिश बिजनेस या स्टार्टअप है, 5 इयर्स हो चुके हैं Hmm. उसको मार्केट में, बट स्टिल ग्रोथ उसकी स्टेबल है, बट ट्रैजेक्टरी वो छू नहीं रही है, राइट? तो क्या उसके पॉइंटर्स हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले हमें उसका बजटिंग देखनी चाहिए. हर एक फाउंडर को बजटिंग देखनी चाहिए अपनी. बजटिंग में Hmm. क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, राइट? Correct. बजटिंग में क्या प्रोज एंड कॉन्स है, कहाँ पे ज्यादा पैसा लग रहा है, राइट? दूसरी हमारी चीज है मार्केटिंग. मार्केटिंग में ये देखना चाहिए कि क्या अपने कस्टमर को वो सही से एक्वायर कर रहे हैं. तभी तो बिजनेस कैसे आएगा, कस्टमर से आएगा, तभी सेल्स होगी, राइट? Exactly. तो सेल्स आपकी कैसे होती है? मार्केटिंग से. कोई आपके पास नहीं आएगा कि हाँ मुझे आपका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, आप दे दीजिए, अनटिल अनलेस यू आर टाटा एंड अंबानी, आप उनका हर दिन Agree. प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, राइट? डेली, अगर आपका डेली प्रोडक्ट है तो आप वो यूज कर रहे हो, तो वो चीज तो अलग हो गई. बट द थिंग इज कि आपको अपने मार्केटिंग पे देखना होगा, आपको अपने सिस्टम एंड प्रोसेसेस को फिर से रिफाइन करना होगा, चेकआउट करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो. सो व्हाट आई डू, I just analyze the past history, be it a financial, be it in marketing. I just analyze their strategies कि वो स्ट्रैटेजीज उनके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से अलाइन कर रही हैं. नहीं कर रही, देन आई डायग्नोज द प्रॉब्लम कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से नहीं कर रही हैं. देन आई फाइंड अनदर वे while डिस्कसिंग with their core team members. तो तब हम उस चीज पे, वो स्ट्रैटेजीज पे एक्ट करते हैं. सो दिस इज द बेस्ट वे टू डू कि एनालाइज आपको हमेशा करना चाहिए. और ये एनालाइजेशन ना, इट्स नॉट दैट कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तब आप करना छोड़ दो. ठीक है, आपको अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस इज वन ऑफ द ट्रेट, वन ऑफ द स्किल्स दैट एंटरप्रेन्योर शुड हैव, राइट? जो आपने Said. स्किल्स वाला क्वेश्चन पूछा था, राइट? Hmm. विजनरी लीडरशिप, सो दैट ऐसी प्रॉब्लम्स जब आए तो आप अपने टीम्स को किस तरह से टैकल करते हो, आप अपने प्रॉब्लम से खुद. सीईओ का काम नहीं होता है, कोई स्टार्टअप फाउंडर जो होता है उसका काम होता ही नहीं है डरना, चाहे उसको कितना डर लग रहा है, बट उसको अपनी टीम को मैनेज करना है, वो दिखाना ही नहीं होता है. लाइक प्लेथोरा ऑफ थिंग, लाइक मेरे साथ भी काफी ऐसे हुए हैं स्ट्रगल्स कि फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं है, दूसरा फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं है, प्रोजेक्ट डिले हो गया, ठीक है, या प्रोजेक्ट डिले हो गया बिकॉज मेरे यहाँ, मतलब मेरा जो बिजनेस है उसमें मेरी क्वालिटी रहती है टाइमली डिलीवर्स एंड क्वालिटी प्रोजेक्ट, ठीक है? तो मेरा हमेशा ये रहता है कि प्रोजेक्ट कभी भी डिले ना हो, राइट? और दूसरी चीज ये रहती है कि जो भी सब काम कर रहे हैं एक्यूरेटली मैनर में. और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स की इन्वेस्टर मीटिंग, हमने एक पूरा टारगेट, कभी कभी ऐसा हुआ है कि 15 दिन हमने लिए हैं और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे क्लाइंट की इन्वेस्टर मीटिंग आ गई है. सो व्हाट वी नीड टू फास्टन अप द प्रोसेस, राइट? बट Correct. वही है कि क्वालिटी हमें इंश्योर करनी है. तो यही चीज है कि आप अपनी टीम को किस तरह से संभाल के, किस तरह से आप रखते हो. अब वो बॉसी कल्चर चला गया, वो पहले जैसे हाँ. इन्फोसिस वगैरह में होता था, वो चीज नहीं है. ईवाई में भी आपने अभी सुना होगा. सो आई Yes. ऑलवेज बिलीव इन कॉर्डियल एंड फ्रेंडली culture and also maintaining the professionalism.
Okay, so visionary leadership as well as you can say like resilience होनी चाहिए, adaptability होनी चाहिए, हर situation में adapt करने के लिए strategic thinking होनी चाहिए कि कोई भी challenges आए तो उस तरह से strategically कैसे सोचना है, right? And also sales and marketing, you're the face of your product, you're the face of your brand. आप अपने product के बारे में बात नहीं करोगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? Exactly, right. And financial acumen also, no matter you have hired accountant, financial analyst, आपको अपने financial ज़रूर देखने चाहिए कि कहाँ पैसा जा रहा है, क्या-क्या हो रहा ओके, वर्क कल्चर के बारे में बात निकली है तो फिर अभी एक रिसेंटली यस मैडम में जो हुआ है, है. तो कैसे देखते हो आपकी क्या ये सही था या गलत था या कैसे होना चाहिए So थी ये चीज? lately, yes, madam has posted that this is just a market gimmick, but like I can't comment on that, but still मेरे को नहीं लगता, but it's really disheartening to know कि ऐसे ही जॉब से निकाल दिया. ठीक है, बिकॉज येस मैडम वाले, बिकॉज आई हैव ऑल्सो अवेल द येस मैडम फैसिलिटी, इफ ओके। ठीक है, तो जरूरी नहीं है वहां पर वो क्या डिजिटल मार्केटर हों, ऐसे हों, वो स्मॉल वेजेस पे भी पे किए जाते हैं. ठीक है, अगर आपको नहीं पता ना किन लोगों को निकाला, कौन सी जॉब पोस्ट थी, इट्स नॉट मेंशन देयर, इज इट? नो, नो. या नो, या, इट्स नॉट सो लाइक अगर मैं वेजेस के बारे में बात करूं तो मेरे पास, जब मैं अभी अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, सो द पर्सन वुड लाइक कि उन आंटी ने कहा था कि प्लीज मैम आप रिकमेंडेशन दे देना प्लीज, एंड शी इज लाइक कंपेलिंग मी सो हार्ड, कन्विंसिंग मी कि आप प्लीज दे देना, बिकॉज इसके बाद हमारे पास रिकमेंडेशंस अगर अच्छे नहीं हुए, ऐसा आपने नहीं किया तो हमें वेजेस नहीं मिलेंगे. तो उससे ही मैंने करेक्ट। जब एनालाइज किया कि मतलब इतना ज्यादा क्या सोच रहे हो आप, इतना ज्यादा क्या कन्विंसिंग कन्विंसिंग स्किल्स, इज देयर अनदर वे? इट्स जस्ट दैट कि वो एक डर डर था कि भाई मेरे को हम्म। ऐसा ऐसा नहीं हुआ तो मुझे वो मेरे आउटपुट नहीं मिलेगा, मेरा पैसा नहीं मिलेगा मुझे, राइट? तो एक वो वाली चीज एग्जैक्टली। थी. तो जब मैंने वो चीज एनालाइज करी, उसके बाद फिर ये भी एनालाइज किया कि ऐसा क्या कि मतलब आप स्ट्रेस के लिए आप उनको जॉब से निकाल रहे हो, तो आपने ये सर्वे ही क्यों किया? हमने अगर ये सर्वे किया करेक्ट। तो आप जॉब से निकाल रहे हो, मतलब लाइक ये कौन सा कॉस्ट कटिंग हुआ या ये क्या हुआ? लाइक आई डोंट रियली अंडरस्टैंड दिस, एग्जैक्टली, बिकॉज वो आप वही पे चीज मैं। रिलाय करते हैं, आप एकदम से किसी को. सो लाइक आई एम नॉट अगेन, यस आई एम अगेंस्ट इट टू बी ऑनेस्ट, बट मुझे ये बिकॉज मैंने एम्प्लॉयर भी देखा और मैंने एज आई एम डेवलपिंग इनटू फाउंडर एंड एंटरप्रेन्योर जर्नी माई सेल्फ टू, तो मैं वो भी देख रही हूँ. एक साल पहले उससे जब मैंने अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी बीट इन क्रिएटिंग एज अ पर्सनल ब्रांड स्टार्ट करी और मैंने एम्प्लॉय जर्नी भी देखी, तो ग्लैड एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स नहीं मिले. बट जब मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह आसपास देखती हूँ तो एक बॉसी कल्चर है जो कि आई रियली हाँ। नॉट अप्रिशिएट. अगर आप अपने एम्प्लॉयज को ये कह रहे हो कि तुम्हें 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड सर्व करना चाहिए, तो व्हेन आप भी उन्हें कैसे, किस मतलब, अनटिल एंड लेस कुछ अनएथिकल वर्क कर रखा हो या इलीगल कुछ कर रखा हो, देन यू आर लाइबल टू डू दैट. बट आई डोंट थिंक कि आई एम टोटली अगेंस्ट विथ कि एटलीस्ट आपको उनको 1 मंथ या 2 मंथ तो देना चाहिए जिससे वो दूसरी जॉब फाइंड आउट कर ले. सो जब ये कोविड के बाद भी जो एरा चला था ले ऑफ का, आई टोटली नॉट सपोर्ट इन दैट पर्टिकुलर वे. मुझे बिल्कुल पसंद ओके। नहीं है ये सारी चीजें कि आप किसी की लाइफ ऐसे कर रहे हो, बिकॉज फ्यू ऑफ द पीपल्स आर द ब्रेड अर्नर, ब्रेड विन ऑफ देयर फैमिली, एकदम से. करेक्ट। एग्जैक्टली. एग्जैक्टली, तो अभी जैसे ट्रेंड जो चल रहा है कि ये बिजनेसेस होने चाहिए, ऐसे ऐसे बिजनेसेस होने चाहिए, तो व्हाट डू यू सजेस्ट टू देम कि ये बिजनेसेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो फिर ज्यादा बेटर फ्यूचर रहेगा अकॉर्डिंग टू दी ट्रेंड्स की अभी क्या चल रहा है? Okay, so according to the market trends, if I say like obviously technology and AI, because अभी आप देखो प्रगति मैदान में बहुत सारे भारत मंडपम ऐसे होता है, वहां पे डीप टेक
एआई, इन सबको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली है, बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स इसके आए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से भी। सो दिस इज व्हाट आई हैव एनालाइज्ड एंड एज अ मार्केट रिसर्चर, सो if you say sustainability and AI and हम्म, automation business, tech enabled business are booming in the market. जैसे मैंने बताया अर्लियर, आई सेड दैट एआई की इंडस्ट्री है 184 बिलियन इन 2024, and by 2030 it will reach to 860 billion, I guess, right? okay. सो सस्टेनेबल फैशन, इफ आई से, लाइक मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी अभी फास्ट फैशन के ऊपर पे, तो जैसे ज़ारा एंड एच एन एम है, वो फास्ट फैशन है। आपको ये कम ज़ारा आपको ये प्रॉमिस करता है, उनका विजन और मिशन यही है कि जो रैंप वॉक पे आपको दिख रहे हैं आउटफिट्स, वही 15 दिन में हमारे स्टोर पे होंगे, एग्जैक्टली। राइट? सो दिस इज रियली, जब मैंने फास्ट फैशन के कॉन्स पढ़े, सो लाइक आई रियली गेट लाइक डिसहार्टन बाय कि शॉर्टेज ऑफ लाइक लेबर्स को किस तरह से तुम ओवरवर्किंग वाले उस पे ले रहे हो। एक तो हम्म, लेबर्स, और उनको वेजेस भी तुम कितने दे रहे हो, राइट? लेबर्स का, और फिर व्हेन यू आर यूजिंग पॉलिस्टर, आपको पता है ये सारे जो पॉलिस्टर वगैरह ये सारे कपड़े होते हैं, इट्स लाइक 200 प्लस ईयर्स टू डिकम्पोज। इट नॉट ओनली हार्मफुल फॉर आर ह्यूमन बींग्स, ऑल्सो पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट, ठीक है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, नहीं, मैं भी एक्चुअली डेवलपमेंट सेक्टर में हूँ मैं, और एज अ सस्टेनेबिलिटी एंथुजियास्ट और कार्बन क्रेडिट्स में भी काम कर रहा हूँ, साथ में बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहा हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें देख के बुरा लगता है कि जो चीज़ें रिसाइकल हो नहीं सकती तो उसके ऊपर क्यों काम कर रहे हो आप, क्यों इतना एग्जैक्टली। ज़्यादा फोकस कर रहे हो, एक्स्ट्रा क्यों लेने ये चीज़ें, जितनी लगनी उतनी ही लीजिए आप। Either you तो so like either you promote slow fashion और रिसाइकल, इवन दो लाइक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल फैशन तक नहीं रहता, स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हैं। आप अब देख रहे हो, लाइक एक ब्रांड के साथ मैंने वर्क किया था, सो दे आर यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। आप देखते हो जब आप भगवान जी को फूल वगैरह चढ़ाते हो, तो वो कहाँ जाते हैं? तो कुछ नहीं, फेंकने में जाते हैं फेंकने बाकी। में जाते हैं, या तो यू आर पॉल्यूटिंग द वाटर, आप, या है ना? तो क्या करते हैं आप, उनके जो वो जब सूख जाते हैं, आप उनके फ्लावर पेटल्स वगैरह से लेके वो इंग्रेडिएंट्स वो नेचुरल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तब वो हमारे उस प्रोडक्ट में यूज करते हैं। सो एक इट्स जस्ट लाइक अ सस्टेनेबल थिंग, राइट? ऑल्सो एक गवर्नमेंट सपोर्ट स्टार्टअप था, उसमें क्या कर रहा था, जब भी आप फास्ट फैशन में जाते हो ना, तो आप किसी भी फैक्ट्री में देख लो, कपड़ों के बहुत सारे पीसेस, कतरन कहते हैं उनको, पीसेस होते हैं, राइट? और अगर आप उनको डिस्पोज करते हो तो उसके लिए, सो देयर शुड बी अ क्राइटेरिया फॉर फैक्ट्रीज, लाइक आपको 20 kg से ऊपर होने चाहिए, अदरवाइज वो वहीं पे पड़े रहते हैं। ओके। And it's also harming the human beings who and the workers who are working over there, उनकी हेल्थ से भी, और बहुत सारी हो सकती है। अब एआई की बात पे आते हैं, सस्टेनेबल फैशन तो बूम कर रहा है बिकॉज आजकल क्या हो रहा है कि जब से कोविड गया है ना, सो पीपल आर बीइंग माइंडफुल ऑफ व्हाट दे आर ईटिंग, माइंडफुल ऑफ व्हाट दे आर वियरिंग एक्चुअली। मुझे जानना है कि इस कपड़े में क्या लगा है, क्या मैं पहन करेक्ट। रही हूँ, ठीक है? आपने देखा होगा बैम्बू ट्री से काफी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एंड पीपल आर एक्चुअली कंज्यूमिंग इट, या राइट? एग्जैक्टली। एंड नाउ कमिंग बैक फॉर द एआई, सो एआई लाइक अभी तक एआई इज लाइक अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट। अब आप एआई का देखो, ओपन एआई, ठीक है? चैट जीपीटी आजकल हर कोई यूज करता है, चैट जीपीटी, क्लॉड एआई, जेमिनाई, बार्ड एआई। तो इस ये ए सो एआई जस्ट नॉट ओनली जस्ट सिंप्लीफाई योर ऑपरेशंस, बट ऑल्सो reducing the human inconsistency and manual intervention भी काफी कर रहा है, आपके प्रोसेसेस काफी स्ट्रीमलाइन कर देता है, ऑटोमेशन आ जाती है आपके, आप जहां आप एक एक बिजनेस के लिए रिप्लाई करते हो, ये बहुत छोटा एग्जांपल मैं दे रही हूँ, आप अपने बिजनेस या कस्टमर को मैसेजेस रिप्लाई करते हो, वहीं पे आप अपना ऑटोमेशन लगा के
You can just do that, right? Correct. एंड बहुत सारे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बन गए हैं, इवन फैशन इंडस्ट्री में भी क्या आ गया है कि एआई के थ्रू एक प्लेटफॉर्म था, उनके साथ मैंने वर्क किया था. सो दे आर क्रिएटिंग अ वर्चुअल मॉल, right, where you can just try, where you can just pick up that outfit and just try on your virtual avatar. So That's you good. know, it's Yeah. like आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, नहीं है टाइम आपके पास, और आजकल अगर आप ई कॉमर्स का भी बूम देखो, ई कॉमर्स मार्केट भी काफी ग्रो कर रही है. किसी के पास टाइम नहीं है ऑफलाइन जाके शॉपिंग करने का, राइट? मिंत्रा वगैरह Exactly. क्यों कर रहे हैं? अभी मैंने ये भी देखा था कि मिंत्रा ने अपना क्विक कॉमर्स भी चला दिया है, जहां हमें Hmm. प्रोडक्ट्स 15 डेज 1 वीक लग रहे थे, वहां पर वो 1 आवर या 2 आवर्स में वो प्रोडक्ट हमें लाके दे देंगे, लाइक ब्लिंकिट या स्विगी इंस्टामार्ट में प्रोडक्ट्स. तो such a great inspiration we can take from that. So e-commerce में हाँ मार्केट काफ़ी हाई हो गई है. सो यू रियली नीड टू एनालाइज कि अगर आपको ई कॉमर्स में डुएल करना है, अदरवाइज फैशन प्रोडक्ट की मार्केट भी स्लगिश हो रही है, बट इफ़ यू वांट टू डू अ सस्टेनेबल फैशन, सो येस यू कैन गो फॉर इट. टेक्नोलॉजी मार्केट एज आई सेड बहुत बूम हो रही है. आप अपना मार्केटिंग बिजनेस में भी एआई इंटीग्रेट कर सकते हैं. इवन पर्सनल रिकमेंडेशन जैसे मिंत्रा वगैरह पे आपने कोई आउटफिट अपनी सोर्स करी, राइट? आप वो आपकी पूरी एवटार या सर्वे आपको कर लेंगे, साथ शी इज द फीमेल, इवन दो सर्वे भी आता है, राइट? शी इज Hmm. द फीमेल एंड शी यूजली लाइक वेस्टर्न ड्रेसेस, तो आपको वही रिकमेंडेशंस आने लग जाएंगे. इवन नेटफ्लिक्स पे भी आपको वही रिकमेंडेशंस आ जाए. दैट इज कॉल्ड पर्सनल रिकमेंडेशंस इन मार्केटिंग, विच कैन बी विच इज डन बाय द एआई इटसेल्फ, राइट? Okay. हाँ, तो ये सारी चीज़ भी होते हैं, बट एक मैंने अभी-अभी लाइक आई हैव अटेंडेड अ डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप वेयर आई हैव Hmm. सीन, ये काफ़ी पहले की बात है, बट चैटबॉट्स जो होते हैं, अब जैसे लोग कहते हैं ना, देयर इज़ अ डिबेट कि कैन एआई सरपास द ह्यूमन इंटेलिजेंसी? Yeah. क्या एआई हमारी जॉब खा जाएगा? तो मेरा ये है उस पर रिकमेंडेशन, या लाइक व्हाट माय हाइपोथेसिस इज़ कि इतना ज़्यादा लोगों को जो डरते हैं कि हाँ, एआई तो जॉब छा जाएगी, नहीं. अगर आपको एआई की नॉलेज नहीं होगी, देन श्योरली यू आर इन अ डेंजर. बट इफ यू डू नो दैट हाउ द एआई विल वर्क इन योर बिजनेस, जरूरी नहीं है आप मशीन लर्निंग सीखें, एआई में क्या एल्गोरिदम्स वगैरह ये सब सीखें. एआई, there are plethora of the courses are available by Harvard University, Stanford, Udemy वगैरह फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं एआई के, जहाँ से आप लर्न कर सकते हैं कि हाउ एआई इज कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन योर बिजनेस, Hmm. राइट? बट और एआई कभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस ही नहीं कर सकता. ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्रिएटिविटी होती है जो एआई कभी मैच नहीं कर सकता. एक ट्वीट मैंने पढ़ा था रोशन अग्रवाल का, वेयर ही सेज कि थैंक यू इंडिगो फॉर सेंडिंग माई बैगेज टू हैदराबाद वेयर आई एम Yeah. लैंडिंग एट कैलकाटा. आई होप यू हैव हर्ड दैट, राइट? Yes. 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 राइट, एंड उसने लिखा था हैशटैग डाई इंडिगो. देन इंडिगो रिप्लाइड कि कीप फ्लाइंग, ग्लैड टू हियर दैट. अगर कोई Hmm. ह्यूमन इंटेलिजेंस हो तो वो ऑब्वियसली ये नहीं करता, राइट? ऑब्वियसली Exactly. ये चैटबॉट ने ही रिप्लाई किया सो दैट वो क्योंकि वो कीवर्ड्स पिकअप करते हैं, राइट? Hmm. आप अपना कंटेंट राइट अप कर सकते हो, बट उस कंटेंट को कैसे कन्वर्सेशनल बनाना है, कैसे एंगेजिंग करना है, उसके लिए आपको एक मार्केट एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होगी. इवन दो इन माय Human. बिजनेस ऑल्सो आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं पिच डेक डेवलप करने के लिए, बट उनका आप क्वालिटी और एक ह्यूमन इंटेलिजेंस का क्वालिटी जमीन आसमान का फर्क है. आप वो पिच एआई पिच डेक बिल्डर्स के पास जाके वो आप लेके ही नहीं जा सकते. इन्वेस्टर के पास वो पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, ना स्टोरी लाइन होती है ना कुछ. और अगर आपको ही खुद आइडिया है, क्योंकि बिकॉज एआई बिल्डर जिस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है वो सारी चीजें आपसे ही मांगता है. सो इट्स बेटर दैट Correct. लाइक सपोज इफ you are using that AI builder ऐप या वेबसाइट,
तो आपको ही खुद कन्फ्यूजन हो जाएगी कि मैं इसमें क्या करूँ। तो हम्म। आई डू नॉट रिकमेंड दैट ऑल्सो। सो या सो लास्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप तीन एडवाइस अगर यंगस्टर्स को देना चाहोगे तो वो तीन एडवाइसेस क्या होगी? Okay, so first, believe in yourself. This is just a short message, you can say, short advice, but that holds a huge power in it. When you start believing in yourself, everything comes to the place. ठीक है, आप अपने आप पे बिलीव करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस इनहेंस होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो आप सामने वाला क्यों बिलीव करेगा आपके ड्रीम्स पे, राइट? And once you start believing in yourself, try to act on your dreams, because there are peoples जो कहेंगे कि आपका ये ड्रीम सक्सेसफुल नहीं होगा, बहुत सारे कॉन्स उस पे बताएंगे, बहुत सारे डीमेरिट्स बताएंगे, ठीक है? एंड ऐसे लो मोमेंट्स भी आएंगे आपकी लाइफ में जहाँ पे आप ये सोचोगे कि क्या वो सही कह रहे थे? क्या वो ऐसा ज़रूरी ऐसा होना होगा? शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। बट अगर आप पे वो बिलीफ आपका वो स्ट्रॉन्ग रहा, ठीक है? तब आप वो कर जाओगे, बिकॉज़ एवरीथिंग नीड्स टू बी वर्क हार्ड। सक्सेस एग्जैक्टली। आपकी टेस्टफुल तभी रहेगी जब आप बहुत मेहनत करोगे। कोई नथिंग इज़ लाइक अ पीस ऑफ केक कि आपके पास ऐसा आ जाएगा। आप किसी भी सक्सेसफुल फाउंडर की सक्सेस स्टोरीज देख लीजिए। ओयो फाउंडर, ठीक है, लेंस का फाउंडर, अगर से शार्क टैंक सब देखते हैं तो सारे उन सब के, इलॉन मस्क, राइट? इन हम्म। सबकी आप देख लीजिए, उनका बस एक ड्रीम था और उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, राइट? तो it's just like you believe in yourself and start acting towards your dream. आप अगर मेहनत नहीं करोगे, बी डिटर्मिन्ड, बी पैशनेट, बी रेजिलिएंट टुवर्ड्स योर ड्रीम एंड स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। बिलीव तभी आपका वर्क करेगा जब आप उस पे एक्शंस अपने आपके ड्रीम्स से अलाइन करेंगे। सो ओके। दिस इज द लाइक फर्स्ट एंड द मोस्ट पावरफुल एडवाइस। सेकेंड, ठीक है, हसल कल्चर है बट डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, राइट? ठीक है, आपके आसपास वाले आपसे छोटे, क्योंकि मेरे को भी ये बहुत लगता था भाई कि लाइक आई फील दैट एज इज जस्ट अ नंबर। फाल्गुनी नायर ने नायका 50 इयर्स पे स्टार्ट किया है, राइट? या एग्जैक्टली। Yeah, so age is just a number, even though like there are मल्टीपल फाउंडर्स और बहुत सारे फाउंडर्स जिन्होंने 60 में स्टार्ट किया है। और आप वो हैरी पॉटर, हम्म। जेके रोलिंग, उनकी बुक्स देखिए, उन्होंने इतना लेट स्टार्ट किया है। तो ऐसा करेक्ट। नहीं है, लाइक ठीक है, आजकल हसल कल्चर आ चुका है। even though like I'm working on multiple projects, like I know Pranshul, you are working on multiple projects। हम आधे फाउंडर्स जो मेरे नोन में हैं, जॉब भी कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी साथ कर रहे हैं, फिर कुछ और भी साथ कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो लोग कर रहे हैं, हसल कल्चर में कर रहे हैं, बट अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, राइट? जस्ट बी लाइक भगवान जी पे, देयर इज अ हायर पावर इन यूनिवर्स, उन पे बिलीव करो, अपने पे बिलीव करो एंड गो। आई एम नॉट सेइंग दैट गो विद द फ्लो। एक स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी होती है। आपको अपनी लाइफ के लिए भी एक बिजनेस प्लान बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे आगे बढ़ना है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। एंड थर्ड इज डोंट सीक वैलिडेशन फॉर अदर्स। ओके। Yeah, no, I don't believe that, right? uh, yes, for validation, if you say, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनका वैलिडेशन, मेरे पेरेंट्स का वैलिडेशन, मैं आगे क्या करना चाह रही हूँ, अगर मेरे पेरेंट्स उससे खुश हैं, दैट्स इट। मैं नहीं सोचूंगी आगे क्या है, ठीक है, मैं उस पे करूँगी, बिकॉज़ मेरा मन, एंड आई एम रियली फॉर्च्यूनेट इनफ कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं कि कभी भी उन्होंने, मतलब मैंने ऐसे बहुत देखा है और बहुत सुना है कि
उनके ड्रीम्स और उनके पेरेंट्स के ड्रीम्स अलाइन नहीं करते हैं तो काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बट मेरे साथ आई एम लकी इनफ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट स्टिल अगर आप के पास इतनी पावर होगी ना, तो भगवान जी भी उस पावर को मतलब लाइक इवन द Almighty will work on your purpose, will align all your everything, right? So I believe कि जजमेंट और वैलिडेशंस पे मत जाइए, एंड लाइक आई से टू माई सेल्फ कि आई डोंट जज अदर्स एंड आई डोंट केयर इफ एनीवन जज। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने से और अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से फर्क पड़ता है, और अपने काम से। मेरे लिए मेरा काम और मेरे फैमिली इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। और ये सबके लिए रहना चाहिए इफ यू वांट टू सक्सीड इन, बिकॉज ये मेरा नहीं, मैंने बहुत सारे इंस्पिरेशनल वीडियो सुने हैं। Like I get inspired with Priyanka Chopra. She's the epitome of beauty with the brain. एग्जैक्टली, She is a या well spoken personality. आप उनके एक्टिंग करियर पे नहीं, उनके पूरे एंटरप्रेन्योर करियर पे शी इज टू मच हम्बल। लाइक आई रियली एग्जैक्टली, एडमायर हर। तो बस यही कि फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर ड्रीम्स, and third, and like second I have said, and third is like don't care about the validation, do not judge others, and even though if anyone judges you, just don't care। अपने से मतलब रखो और अपने ड्रीम पे फोकस करो, अपने काम पे काम से मतलब रखो। जब आप जैसे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, मैंने एक वीडियो देखी थी रणवीर अलाहाबादिया की, ठीक है? बहुत मीम्स बनाते हैं उन पे, ठीक है? अभी आई डोंट नो कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं या सामने वाला क्या उनके बारे में सोचता है, बट आई फील कि वो उन मीम से हटके, इवन नॉट रणवीर अलाहाबादिया, दे आर वेरी पब्लिक क्रिएटर्स, लोगों को बोलना होता है। मैं नेगेटिव कमेंट्स भी देखती हूँ, बट उससे फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रही हूँ इनके नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के, राइट? एग्जैक्टली, बिकॉज उन लोगों को मैटर करता ही नहीं है। पहले स्टार्टिंग में मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी रणवीर अलाहाबादिया, उन्होंने बोला कि मैटर करता है, बट इवेंचुअली ना, जब आपकी सक्सेस, आपको जब आप अपने काम पे फोकस करते हो, जब आप अपने वर्क पे फोकस, करियर पे फोकस करते हो, और जब आपने अपनी ट्रैजेक्टरी देखते हो, तब आपको लगता है कि इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। फोकस एग्जैक्टली, ऑन द पर्सन हु इज सपोर्टिंग यू rather than focusing on the negative peoples, poisonous people से दूर रहो। आई नो नहीं रहा जाता है, कभी कभी क्या होता है कि आपके आसपास ही होते हैं बट आप नहीं रह सकते। एंड इफ यू डू हैव टू पीपल दैट आर पॉजिटिव इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंड्स, यू आर द रिच पर्सन, आई मस्ट से दैट। सो लाइक ऑब्वियसली अब अगर हम यही अपने यंगस्टर्स को कहेंगे तो उनको यही नहीं लगेगा, यही लगेगा लाइक फ्रेंड्स के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए बहुत अपनी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड इवन वी बोथ आर यंगस्टर मैन हमारे लिए भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं। बट एक मेच्योरिटी लेवल आ जाती है जहाँ पे आपको पता चलता है कि भाई फैमिली इज एवरीथिंग, योर करियर इज एवरीथिंग, राइट? और अगर आपके पास ट्रू फ्रेंड्स हैं, दो ही फ्रेंड्स हैं ना, यू आर द रिच पर्सन। फिर एग्जैक्टली। कुछ आगे मैटर नहीं करता है। सर्कल टाइम 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 से छोटा भी होते जाता है, और हम्म। जितना छोटा सर्कल रहता है उतना अच्छा सर्कल होता है, सेमी सर्कल ज्यादा बेटर होता है। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा जिस पे हम आते हैं कि एक मैसेज आप दुनिया को क्या देना चाहोगे, मैसेज टू द वर्ल्ड। ओके, सो लाइक आई फील दैट happiness and sadness is, both are important but temporary, right? Success and failure, failure is the part of your journey, और फेलियर अगर आपको नहीं मिले तो आप सक्सेस का मजा नहीं आता है, राइट? एग्जैक्टली, फेलियर is the part of your learning in every in life. Also there are multiple challenges that you face, even you are having a business or not having a business, even you are working as a professional somewhere,
राइट? बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं आपके घर में, आपके वर्क प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में, राइट? सो सबसे पहले ये होता है कि हैप्पीनेस भी आएँगी, सैडनेस भी आएँगी एंड आपको ये ध्यान रखना है दोनों टेम्पररी हैं। और जब आपके मन में ये चीज़ आ जाएगी ना कि हाँ, दोनों टेम्पररी है, तो वो एक पीस आ जाएगा, ठीक है? ये चैलेंजेस भी आया बट आई गेट ओवर इट। फेलियर करेक्ट। आता है, पीपल वर लाइक डूम्ड ओवर इट, सैडनेस से भर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, व्हाट नॉट, राइट? बट a strong person is that the personality when you pick yourself up and just have a peace in mind कि ठीक है, ये फेज है, आई डू हैव द पावर, मेरे को भगवान जी ने एक स्ट्रेंथ दी है, उनका साथ है मेरे साथ, मेरी फैमिली का मेरे साथ है और मेरे पास ही इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं उस पावर को ओवरकम करके ये चैलेंजेस फेस करूँ, राइट? सो करेक्ट। दिस इज अ मैसेज फॉर द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी, टू जस्ट हैव दैट मेच्योरिटी, ठीक है? वो टाइम से आती है, टू बी एट अ पीस वेयर यू नो दैट सक्सेस एंड हैप्पीनेस इज जस्ट अ टेम्पररी, you just need to overcome and believe in yourself again. So it's एग्जैक्टली। really it's really important. If you believe in yourself, you can go through with all the challenges you face, right? ठीक है, और एक ये भी है कि अपने पे बिलीव करो और मतलब अपने में इतना बिजी हो कि दूसरे के बारे में सोचना, बी ग्रीडी, बी सेल्फिश। आजकल हाँ। के ज़माने या में बी सेल्फिश, बी थिंक अबाउट योरसेल्फ, किसी का बुरा मत सोचो। सो अपने बारे में सोचो एग्जैक्ट। कि हाँ, हाँ, क्या कर सकता हूँ मैं, राइट? बिकॉज़ I have read somewhere this is because of the Indian colonialism. इंडियंस जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं कि किसी की सक्सेस से दे गेट ईज़िली जेलस, ईज़िली एनवियस अबाउट देयर सक्सेस। क्यों भाई? तुम वो उन्होंने अचीव किया उनके हार्ड वर्क से। तुम्हें सक्सेस और जेलस इसलिए हो रही है बिकॉज़ तुम्हें वो अचीव करना था और तुम नहीं कर पाए। तो तुम अपने एक्शंस पे देखो कि क्या तुम्हारे एक्शंस जो तुम्हारी ड्रीम है उस पे अलाइन कर रहे हैं। So एग्जैक्टली। manifestation works for me एंड आई होप आप लोगों के लिए भी वर्क करे, बट मैनिफेस्टेशन तभी वर्क कर सकता है जब आप अपने पे बिलीव करें और अपने जो ड्रीम्स हैं उनके लिए एक्ट करें। आप अगर एक्शंस ही अपने अपने ड्रीम से अलाइन नहीं करेंगे, हार्ड वर्क ही नहीं करेंगे, तो नथिंग इज गोइंग टू यू नो बिकम अ रियलिटी। करेक्ट। हम यहाँ पर लास्ट में आ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच आरुषि फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर थैंक यू हैविंग सो मी, मच इट फॉर योर मीन्स टाइम। अ लॉट। या, thank you so much for taking time from your busy schedule, and hope to see you gain this 1500 to 15,000 थैंक यू सो मच, मैनिफेस्टेशन अगेन। again. Yeah, so जैसे गोकुश का मैनिफेस्टेशन था कि he will be a world champion Yeah, at the age of 8, I guess. Yeah. at the age of 8. Yeah, right. So अभी है वो, अभी Mhm. अभी बना, परसों की बात ही है। So thank you so much Arushi, Thank and you. all the very very best for your future. Thank you so much. Likewise, I hope कि आप भी वर्ल्ड के टॉप पॉडकास्टर बने, ये पॉडकास्ट चैनल काफ़ी आगे चले। Thank you so much. Thank you so much, Ayush. थैंक Yeah. यू। Okay. Bye bye. बाय बाय।